Hello friends, welcome back in my another lecture in calculus of variation. This will be last lecture of this section. So today I am going to solve some more problems on geodesic, right? So let's start. Find the geodesic on the right circular cone. This is what we want to find. This is the right circular cone, right? And its vertical angle. How vertical angle? This is alpha, means that is theta is equal to alpha. ये तो given होगा. Semi vertical angle, semi vertical angle, this is fixed, right? So that means d theta will be equal to 0. अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, अल्फा इज फिक्स, तो डेरिवेटिव दिस विल बी 0 using spherical polar coordinates are theta phi. These are the spherical polar coordinates, right? The elements of arc on the cone is, this is element ds of the arc. This arc is of curve and this is from point p1 to p2, right? So its element, ये तो as usual formula है, that you have to remember ds square. This is ds square is dx square plus dy square plus dz square. So this is the relation between simple coordinate and a spherical coordinate. X is r sin theta cos phi, y is r sin theta sin phi, and z is r cos theta. If we find dx dy dz, that will be this one. Actually here dx is dr, dy is r d theta, and dz is r sin theta d phi. If we multiply dx dy dz, we will get this one. So substituting the values of all of these here, so dx is dr, so this will be dr square, dy is r d theta, r d theta square, and dz is r sin theta d phi, right? And it will be its square. Since d theta is 0, so हमारे पास second term 0 हो जाएगी. So we are left with dr square, and this is r square sin square. What is theta? Theta is alpha, sin square alpha, and next is d phi, and this d phi can be written as d phi. This can be written as d phi divided by dr whole square, and extra इसमें क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है dr square. So multiplying it by dr square so that there is no overall changing. This term is 0 and theta is alpha, so theta has been replaced by alpha. Now what is common between these two? Common between these two is dr square, so this will be 1 plus r square sin square alpha, and this can be written as phi dash, and this is square, outside is dr square, right? Here phi dash is d phi upon dr, ordinary derivative of phi with respect to r. So this is ds square, so that is, it means ds from here will be square root of this one. This will be 1 plus r square sin square alpha phi dash square, this is in square root, square and square to cancel, this is into dr, right? Now the length of arc on the cone, this is arc on the cone ds, and this arc is from point p1 to p2. Length of arc on the cone between 2 points, p1 p2 is, इसको हम L से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 to p2 ऑफ ds, right? Substitute the value of ds from here that we have evaluated. This is integration from p1 to p2, 1 plus r square sin square alpha into phi dash square, this is in square root into dr, right? So here what is integrand here? Integrand इसको मैंने f से डिनोट किया है, r
phi phi dash. Its value is 1 plus r square sine square alpha phi dash square, right? Here r is independent variable, phi is dependent variable, and phi dash is its first derivative, right? So since we know this result f of x y y dash, so हमारे पास यहाँ पर यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनती है, f with respect to y d upon dx of partial derivative f with respect to y dash is equal to 0. So in this case x is r and y is 5. Therefore by Taylor's equation f with respect to y की जगह हमारे पास phi है, d upon with respect to r f with respect to phi dash, this is equal to 0. This further implies partial derivative f with respect to phi, there is no phi in this, so it will be 0 minus d upon dr of f with respect to phi dash. First of all, derivative of power, so this will be half 1 plus r square sine square phi dash square, half minus 1 is minus half, into derivative inside the power, इसका तो 0 हो जाएगा, r square sine square phi is sine square alpha is as it is, phi dash square क्या हो जाएगा 2 phi dash, right? And this one is equal to 0. First of all, derivative of power, then inside the power, except phi dash everything is a constant here, right? So this further implies 2 cancel, minus multiplying both sides, this is also plus, so we are left with the derivative with respect to r. In numerator there will be r square sine square alpha into phi dash होल डिवाइडेड बाय, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो फिर से स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा phi dash square, this is again square root. Now this one is equal to 0. This is after simplification. इंटीग्रेटिंग, एक बार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग with respect to r, because derivative integration cancel each other, so this cancel, so we are left with r square sine square alpha phi dash 1 plus r square sine square alpha phi dash square, this is in square root, is equal to 0. 0 integration is constant, c, where c is constant of integration, c is constant of integration, right? So multiplying due to cross multiplication देखते क्या बन जाएगा, ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाइ डैश, आर स्क्वायर दिस फर्दर इम्प्लाइज ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाइ डैश विच इज इक्वल टू सी तो ऑलरेडी था 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाइ डैश स्क्वायर, दिस इज इन square root. This is after cross multiplication, squaring both sides, squaring both sides, so this will be r raised to power 4 sine power 4 alpha phi dash square, this is square c square, square and square root cancel, alpha phi dash square, this is after taking square root. This further implies multiplying c square inside and shifting this term to left hand side, so what will be here, r power 4 sine 4 alpha phi dash square, and this will be minus c square r square sine square alpha phi dash square is equal to c square, multiplying c square inside then shifting this term to left hand side. Now what is common in left hand side, r square sine square alpha is constant and phi dash square is also common, so inside we are left with the r square sine square alpha minus, here everything is outside except c square, c square is equal to c square, so that is यहाँ से हमारे पास phi dash square क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c square r square sin square alpha phi dash square r square sin square alpha minus c square, this is value of phi dash square, right? taking square root, जब यहाँ पर हम square root लेंगे taking square root, we have square and square root cancel, we are left with phi dash, so this is c r sin
अल्फा फाई डैश, ये बचेगा हमारे पास, सॉरी फाई डैश, देयर इज नो फाई डैश इज हियर, आर साइन अल्फा, एंड दिस इज आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस सी स्केयर, this is in square root, right? This is after taking LCM. Now इसमें पुट कर लेते हैं कुछ, पुट आर साइन अल्फा, इसमें जो आर साइन अल्फा इसको मैं यू सी पुट कर रहा हूँ, यू इज अ वेरिएबल एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट, इट मीन्स आर को मैं यू में कन्वर्ट करने वाला हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा डी आर इज इक्वल टू सी डी यू, तो यहाँ से डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आर आ जाएगा सी अपॉन साइन अल्फा डी इंटू डी यू, दिस इज वैल्यू ऑफ डी आर। सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ तो फाई आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी डी आर साइन अल्फा आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस सी स्केयर, दिस इज इन स्केयर रूट, राइट? नाउ मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशंस हियर, तो ये सी डी आर की वैल्यू पुट करते हैं, डी आर इज सी अपॉन साइन अल्फा इंटू डी यू, आर साइन अल्फा इज यू सी, दिस इज यू सी, एंड आर साइन अल्फा ये हो जाएगा यू स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर, दिस इज आफ्टर मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशंस हियर, सी स्केयर तो बाहर आ जाएगा, टेकिंग सी स्केयर कॉमन हेयर, आउटसाइड स्केयर रूट से बाहर तो सी आएगा, सी स्केयर बन जाएगा, सी स्केयर कैंसल, राइट? एंड साइन अल्फा इज कांस्टेंट हेयर, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, इनसाइड हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर तो डी यू बचा, नीचे बचा यू स्केयर माइनस वन, रेस्ट सी तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट्स इंटीग्रेशन इज सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, राइट? सो ये बन जाएगा सारा हमारे पास वन अपॉन साइन अल्फा सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है यू, राइट? प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली एक तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट? नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा फाई, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स ऑफ यू प्लस के साइन अल्फा, दोनों तरफ मैंने साइन अल्फा से डिवाइड किया, या बोल सकते हैं साइन अल्फा एलसीएम ले लिया, दिस फर्दर एम्प्लाइज फाई साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ यू, इस टर्म को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, बट इज साइन अल्फा इज साइन अल्फा, ये जगह फाई साइन अल्फा माइनस के इज कांस्टेंट साइन अल्फा इज कांस्टेंट, इस पूरे को मैंने बी सपोज कर लिया, बी विच इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय सी, राइट? सिंस आर साइन अल्फा इज इक्वल टू यू सी, मैंने यू की वैल्यू यहाँ पर पुट की, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सीकेंड को लेफ्ट में लाएंगे, यहाँ बन जाएगा सीकेंड फाई साइन अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय सी, राइट? वेयर मैंने कुछ सपोज किया था यहाँ पर, वेयर बी कॉन्स्टेंट था, इट्स वैल्यू इज माइनस के टाइम साइन अल्फा, इसको मैंने सपोज कर लिया बिकॉज के कॉन्स्टेंट अल्फा कॉन्स्टेंट पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बी सपोज कर लिया, दैट इज यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज सी अपॉन साइन अल्फा, बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा सीकेंट ऑफ फाई साइन अल्फा प्लस बी, कुछ नहीं, मैंने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, सी को लेफ्ट में शिफ्ट किया, साइन अल्फा को भी लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये आ जाएगा, राइट? तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सी इज कॉन्स्टेंट साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, दैट इज आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको मैंने ए सपोज कर लिया, ए सीकेंट फाई साइन अल्फा प्लस बी, वेयर ए इज साइन अपॉन साइन अल्फा, ये भी कोई कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट है, दैट इज, तब हम बोल सकते हैं 10
geodesic on a right circular cone, right circular cone are spirals of a family. Spirals of a family, because this is question of spiral, right? because geodesic on a right circular cone are spiral of a family. तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज जियोडेसिक ऑन अ राइट सर्कुलर कोन, right? So this is all about this question. Let's take another example. Find the geodesic on a sphere. अब हमने जियोडेसिक निकालना है स्फीयर पर, राइट? वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे, राइट? यूजिंग spherical polar coordinates are theta phi, the element of arc on sphere is, वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई का स्क्वेयर प्लस डी जेड का स्क्वेयर. दिस इज स्फीयर एंड इसकी रेडियस को मैंने ए सपोज कर लिया, एंड दिस इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ curve, arc of the curve, right? This is arc of the curve ds, and this is from point p1 to p2 on this sphere, right? r is equal to a क्या आपके पास r is equal to ये रेडियस ऑफ स्फीयर है. इट मीन्स यहाँ से डी आर निकालूंगा, ये तो फिक्स है तभी तो स्फीयर बनेगा, तो इट मीन्स डी आर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0. फर्स्ट डबल की वैल्यू पुट कर लेते हैं. एज वी नो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन डी एक्स इज डी आर, तो ये डी आर हो जाएगा, डी वाई इज आर डी थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड डी जेड इज आर साइन थीटा डी फाइव. इसकी इन तीनों की वैल्यू हम प्रीवियस में हमने चेक किया था, वहाँ से निकाली मैंने, डायरेक्ट लिखी है, राइट? नाउ डी आर इज 0, पहली टर्म 0 हो गई, बाकी बच गया आपके पास, एंड आर इज ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, आर इज ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी है डी फाइव का स्क्वायर, बिकॉज आर इज इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए. तो व्हाट इज, इसको थोड़ा और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज डी फाइव अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, एडिशनल इसमें आ रहा है डी थीटा स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, सो दैट देयर इज नो ओवरऑल चेंज, ये दोनों कैंसिल होते हैं, दिस इज स्टिल दिस वन. नाउ व्हाट इज कॉमन, ए स्क्वायर भी कॉमन है, ए स्क्वायर मैंने कॉमन रखा, बाकी बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज फाइव डैश, इसको मैं फाइव डैश लिख सकता हूँ, फाइव डैश स्क्वायर बन जाएगा, और क्या इसमें डी थीटा स्क्वायर भी आपके पास क्या है, कॉमन है, राइट? वेयर फाइव डैश मीन्स डी फाइव अपॉन डी थीटा, राइट? दिस इज वैल्यू ऑफ डी एस स्क्वायर, सो दैट इज, इट मीन्स यहाँ से डी एस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ये रह जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डैश स्क्वायर, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और साथ में आएगा डी थीटा, राइट? ये आ जाएगा हमारे पास डी एस की, दिस इज आर्क ऑफ द कर्व, इसकी डी एस की वैल्यू है, राइट? नाउ लेंथ ऑफ आर्क ऑन द स्फीयर between 2 points P1 P2 is, उसको मैं LCT नोट करूँगा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 to P2, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ऑन द स्फीयर, ds जो भी सपोज कहता है, तो इसकी बाय डेफिनेशन ds होता है आपके पास इंटीग्रेशन, एंड दिस इज P1 to P2, ds इज हियर a 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डैश स्क्वायर, दिस इज इन स्क्वायर रूट, एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ds फ्रॉम हियर, राइट? नाउ इसको कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, f ऑफ x y y डैश, एज यूजली हमारे पास इंटीग्रेट ये होता है, तो इलर इक्वेशन क्या बन जाती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y
डी अपन डी एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट है, वाई है डिपेंडेंट। सो हियर हमारे पास है एक्स की जगह तो हमारे पास थीटा है, तो राइट, तो हमारे पास है यहाँ पर थीटा फाई डैश, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास ए टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश स्क्वायर, this one, right? A is constant, theta is a dependent variable and phi is a independent theta is independent variable, phi is dependent variable और phi dash में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सो बाय एलर्स क्वेश्चन यूज कर लेते हैं। एलर्स क्वेश्चन बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू फाई डी अपन डी थीटा एफ विद रिस्पेक्ट टू फाई डैश। सो एफ y has been replaced by phi and x has been replaced by theta which is equal to 0। इसमें phi तो है नहीं, राइट, सो ये 0 हो जाएगा माइनस डी अपन डी थीटा, और इसमें फाई डैश है, ये तो वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ पावर 1/2 है, थीटा फाई डैश स्क्वायर, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, देन इनसाइड द पावर, तो इसका 0 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज कांस्टेंट, और फाई डैश स्क्वायर का जगह 2 फाई डैश, राइट। सो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर देन इनसाइड द पावर, ये कांस्टेंट था, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 ये बन जाएगा। दिस फर्दर एम्प्लाइज माइनस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, मीन्स वी आर लेफ्ट विद डी अपन डी थीटा, 2 कैंसल, ऊपर रह जाएगा हमारे पास ए साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश होल डिवाइडेड बाय, इस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर से स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश स्क्वायर, ये फिर से स्क्वायर रूट बन गया आपके पास, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल होगा, दिस इज आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वन, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा ए साइंस के थीटा फाई डैश, नीचे हैं 1 प्लस साइंस के थीटा फाई डैश स्क्वायर, दिस इन स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन 0 बट कांस्टेंट आ जाएगा and that constant is AC, where मैं लिख देता हूँ यहाँ पर where AC is, जिसमें जो मैंने constant इसमें AC लिया, AC is constant of integration, and this constant of integration, this has been taken in such a way that so that A and A get cancel after some time, so that's why I have written here A as well as a C। constant लिख सकते हैं because A constant ही है, तो C constant है, पूरा constant कहता है, तो AC is a constant of इंटीग्रेशन, राइट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश, यहाँ आ जाएगा ए सी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश स्क्वायर, दिस इज इन स्क्वायर रूट, दिस इज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब इसके हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन की पावर 4 हो जाएगी थीटा फाई डैश स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश स्क्वायर, दिस इज आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ए स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हमारे पास रह जाएगा, वी आर लेफ्ट विद साइन पावर 4 थीटा फाई डैश स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डैश स्क्वायर, राइट। दिस इज आफ्टर कैंसिलिंग ए स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, और सी स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कर लेते हैं, इस टर्म को लेफ्ट में लाते हैं, राइट। साइन पावर 4 और फाई डैश स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ फर्दर एम्प्लाइज ये हो जाएगा यहाँ से साइन पावर 4 थीटा फाई डैश स्क्वायर तो ऑलरेडी था यहाँ पर, माइनस इसको लेफ्ट में लाते हैं, यहाँ से लेफ्ट में लाई टर्म, तो ये बन जाएगा
सी स्क्र साइन स्क्र थीटा फाइव डैश स्क्र और राइट साइड में सी स्क्र ही रहेगा. नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म? साइन स्क्र थीटा इज कॉमन और फाइव डैश भी कॉमन है हमारे पास. फाइव डैश स्क्र इज ऑल्सो कॉमन. अंदर आ जाएगा वन माइनस सी स्क्र, सॉरी यहाँ जगह यहाँ तो साइन स्क्र थीटा रह जाएगा. साइन स्क्र थीटा इधर सी स्क्र ही रहेगा. सी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र. यू कैन सी हियर दिस फर्दर एम्प्लाइज. मैं क्या करता हूँ यहाँ से साइन स्क्र थीटा को भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बाहर. तो यहाँ स्क्र ऑलरेडी था तो ये 4 हो जाएगा. फाइव डैश स्क्र यहाँ 1, यहाँ तो है ही तो डिवाइड हो जाएगा सी स्क्र अपॉन साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू सी स्क्र, राइट. दिस फर्दर एम्प्लाइज साइन रेज टू पावर 4 थीटा फाइव डैश स्क्र 1 माइनस सी स्क्र. व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन? इज कॉसिकेंट. तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्र थीटा इज इक्वल टू सी स्क्र, राइट. कुछ नहीं, मैंने यहाँ से साइन स्क्र थीटा कोई कॉमन निकाल दिया. यहाँ था नहीं इसलिए यहाँ पर डिवाइड हो गया. रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसिकेंट, राइट. सिंस 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसिकेंट थीटा, राइट. थोड़ा यहाँ इसको और सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से मैंने फाइव डैश की वैल्यू निकालनी है. फाइव डैश स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन रेज टू पावर 4 थीटा 1 माइनस सी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. दिस इज फाइव डैश स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट. बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल. यहाँ रह जाएगा फाइव डैश, यहाँ रह जाएगा सी, नीचे 4 की जगह 2 पावर हो जाएगी. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. ये स्क्वायर रूट आ जाएगा बिकॉज हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं. नहीं, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन? कॉसिकेंट. तो हो जाएगा सी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे आपके पास है 1 माइनस सी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. दिस इज इन स्क्वायर रूट. दिस इज वैल्यू ऑफ फाइव डैश, राइट. इसमें कुछ पुट कर लेते हैं, राइट. सिंस इसको देख लो, इस टर्म को देख लेते हैं. 1 माइनस सी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस सी स्क्वायर. बट इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 1 माइनस सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा. ये तो ये बन जाएगा बिकॉज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. एक तो ये बन जाएगा हमारे पास. ऑल्सो ये पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर. पुट सी कॉट थीटा. सी कॉट थीटा को मैं यू पुट कर रहा हूँ. डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ हो जाएगा सी कांस्टेंट है, कॉट की इंटीग्रेशन माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू. तो यहाँ से सी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस डी यू आ जाएगा यहाँ से, राइट. तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर लेते हैं. पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इंटीग्रेटिंग इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद फाइव. यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन सी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. थीटा के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 माइनस सी स्क्वायर. इसको इसकी जगह ये वैल्यू लिख दो माइनस सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. दिस इज इन ब्रैकेट. नाउ मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशन सी कॉट थीटा यू मीन्स मैं थीटा को यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ. अब वेरिएबल हमारे पास यू आ जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन बड़ी सी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. दिस इज माइनस डी यू. 1 माइनस सी स्क्वायर इज एज इट इज. नाउ बड़ी सी कॉट थीटा. सी कॉट थीटा इज यू, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस, राइट. तो माइनस भी कॉमन है, माइनस को भी बाहर कर देते हैं. इंटीग्रेशन डी यू 1 माइनस सी स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर करना तो ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस यू स्क्वायर दिस होल इन ब्रैकेट. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल. दिस इज स्टिल 1 माइनस सी स्क्वायर. ऐसा क्यों किया है? एक्चुअली हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगी यहाँ पर. सिंस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्चुअली यहाँ पर मैंने स्क्वायर लाना था. हमारे पास वो ए की जगह क्या है? हमारे पास ए की जगह है 1 माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. यू कैन सी हियर एक्स की जगह यू है. इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन
तो ये सारा क्या बन जाएगा, x की जगह तो हमारे पास u है तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह तो u आ जाएगा, u a मीन्स 1 माइनस सी स्केयर का स्केयर रूट, ये बिकॉज a इन दिस केस कांस्टेंट इज 1 माइनस सी स्केयर का स्केयर रूट, दिस वन प्लस k, राइट, इन दिस वे वेयर k इज अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी कांस्टेंट बिकॉज हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, राइट, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, ये तो वैल्यू आ रही है फाई की, राइट। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दी, इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, दिस फर्दर इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ u अपॉन 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट, दिस इज इक्वल टू k माइनस फाइव, k माइनस फाइव इन दोनों टर्म को मैंने इंटरचेंज किया, राइट, तो फाइव नेगेटिव बन जाएगा, दिस फर्दर इम्प्लाइज u अपॉन 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट, या इम्पोजिंग साइन बोथ साइड तो ये बन जाएगा साइन k माइनस फाइव, ये बन जाएगा, या सीधा बोल सकते हो साइन को राइट में शिफ्ट किया, या राइटिंग साइन बोथ साइड, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा साइन साइन इनवर्स, यहाँ साइन आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगने वाला है साइन a माइनस बी, राइट, बड़ी साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन v, राइट। सो हियर a की जगह तो हमारे पास k है और b की जगह क्या है फाइव, तो रिप्लेस कर लेते हैं, साइन a मीन्स साइन k कॉस फाइव माइनस कॉस के साइन फाइव, साइन फाइव ये आ जाएगा, राइट, और u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं अब, व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, यू कैन सी हियर u इज c कॉट थीटा, तो ये जाएगा c कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट, राइट, सिंस u इज इक्वल टू c कॉट थीटा, राइट, u की वैल्यू हमारे पास c कॉट थीटा थी, कॉट इज कॉज अपन साइन, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं c कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट, ये तो वैसा ही है, राइट साइड भी बिल्कुल वैसा ही है, साइन के कॉस फाइव माइनस कॉस के साइन फाइव और यहाँ से अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कॉस थीटा को छोड़कर बाकी सारे टर्म को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, सी को भी साइन थीटा को भी इसको भी, देखते हैं क्या बनता है, दिस फर्दर एम्प्लाइज, तो हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हो जाएगा 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय सी, और आगे साइन के है, ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे जैसे लिख रहा हूँ, और साथ में हमारे पास क्या बचा कॉस फाइव और साथ में आएगा ऊपर साइन थीटा भी आएगा, प्लस माइनस टाइम, माइनस को भी मैंने कॉमन रखा है, 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय सी कॉस के साइन फाइव, और साथ में इसके साथ क्या आएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा लेफ्ट साइड से आया, सो दिस इज आफ्टर, आप देखेंगे यहाँ से मैंने सी साइन थीटा 1 माइनस सी स्केयर को राइट में शिफ्ट किया है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, राइट, ये आ जाएगी, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू कैन सी हियर c इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, ये सारा जो ब्रैकेट में लिखा है दिस हैज बीन रिटन डेलिबरेटली, सो एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन दिस ब्रैकेट, सिमिलरली एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन दिस ब्रैकेट, सो ये ब्रैकेट वाले को मैंने a सपोज किया, रेस्ट इज कॉस फाइव साइन थीटा, इस ब्रैकेट वाले को मैंने b सपोज कर लिया, रेस्ट इज साइन फाइव साइन थीटा, राइट, वेयर लिख लेता हूँ यहाँ पर, वेयर a इज 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय c इंटू साइन के, एंड कैपिटल B इज माइनस 1 माइनस सी स्केयर इन स्केयर रूट डिवाइडेड बाय c इंटू कॉस के, ये a और b की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस 35। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोनों तरफ को
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, स्मॉल ए से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ बन जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कैपिटल ए, तो वैसे ये ए साइन थीटा कॉस फाई, यही तो है यहाँ पर ए साइन थीटा कॉस फाई, आगे पीछे लिखा मैंने, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं प्लस बी, ए मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा साइन फाई, राइट, कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन को दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट, ये बन जाएगा सिंस वी नो, ये हमारे को पता है, सिंस एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा कॉस फाई, बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू क्या है आर कॉज थीटा, दिस इज फॉर spherical coordinates, right, for spherical coordinates, this for spherical coordinates, as we know r in this case is a, क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ स्फीयर हमने कितनी ली थी, रेडियस ऑफ स्फीयर हमने a ली थी, तो r की जगह a रखेंगे तो ये बनेगा x, a साइन थीटा कॉस फाई, a साइन थीटा कॉस फाई बन जाएगा x, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ भी देख लो ए साइन थीटा साइन फाई, तो ये बन जाएगा वाई, बिकॉज आर इज ए, तो ये बन जाएगा वाई, और ए कॉस थीटा, आर इज ए कॉस थीटा बन जाएगा जेड, तो ये बन जाएगा जेड, राइट, तो दैट इज हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है ए एक्स प्लस बी बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये आ रही है हमारे पास, ये तो एक प्लेन की क्वेश्चन है, आई डोंट which is equation of a plane थ्रू, ये प्लेन कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर्स क्या है, थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर 0 0 0 है, एंड which cuts sphere along a great circle, which cuts sphere along a great circle, right, so what is great circle here, great circle means, जैसे ये स्फीयर है हमारे पास, ये है स्फीयर, जब इस स्फीयर को आप प्लेन से कट करेंगे ऐसे, ये सेंटर है, सेंटर में प्लेन से कट किया तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, स्फीयर के प्लेन से कट किया, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में द ग्रेट सर्कल में द सर्कल्स ऑफ इंटरसेक्शन, circles of intersection of surface of sphere, intersection of surface of sphere by any plane passing through it, right, जब किसी स्फीयर के सेंटर होते हुए एक प्लेन जाएगा, सो दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ, जो हमारे पास सर्कल बनेंगे यहाँ पर और दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, तो यहाँ से जो हमारे पास जो प्लेन जब कट करेगा दो सर्कल बनेंगे, तो उनको बोलते हैं हम ग्रेट सर्कल, बीच बीच आप एक पूरा, बिकॉज स्फीयर आपके पास क्या होता है, स्फीयर सॉलिड होता है, उसके बीच बीच अगर आप प्लेन डाल देंगे इस तरह से आपके पास प्लेन, तो उसके दो पार्ट्स बनकर उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रेट सर्कल्स, राइट, दैट्स व्हाई विच कट द प्लेन which cuts sphere along a great circle, तो अब हम बोल सकते हैं thus geodesic of a sphere of radius, जो मैंने a सपोज किया था, geodesic of sphere of radius a are a great circle, क्योंकि इसमें दो सर्कल बन जाएंगे जब एक प्लेन, जब इस स्फीयर को प्लेन कट करेगा, दिस इज प्लेन, राइट, दिस इज प्लेन, और ये क्या हमारे पास है स्फीयर, राइट,
So friends, what we have learned in this lecture, we have we have learned how to find the geodesic on a right circular cone and geodesic on a sphere, right? Sphere of radius a. So friends, this is all about this lecture. Thank you. And this is also end of this section, that is calculus of variation.